औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब पे आती है दुआ बन मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की ज़ीनत जिस तरह फूल से होती है चमन की ज़ीनत। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रात, इल्म की शम्मा से हो मुझको मोहब्बत या रात। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो इसी राह पे चलाना मुझको। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। Assalamu alaikum. Thank you, Zaina Reena, for singing this beautiful track. You're welcome. 16 दिसंबर मशरकी पाकिस्तान हमसे अलग कर दिया गया। 2014 16 दिसंबर हमारे बच्चे हमारे घरों के चिराग स्कूल गए पर कभी वापस नहीं आए। Once the father of the nation said, "No power on earth can undo Pakistan." आज 6 साल बाद हम इस दिन को हिम्मत का, करेज का और इल्म का दिन समझ के मना रहे हैं। वो सितारे जो 6 साल पहले जिनकी चमक दुनिया से खत्म हो गई थी, वो आज जन्नत में चमचमा रहे हैं। सलाम उन सितारों को, सलाम उनके माँ बाप को, सलाम पाकिस्तान को। We are so honored to have a wonderful, wonderful teacher with us. Dr. Khalid Zahir is with us, and he's a scholar, he's a teacher, he's a preacher, and he's just amazing. Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam. Sir, how are you doing? I am fine, ji. I was overwhelmed listening to your rendering of Iqbal's poetry. It was beautiful, mashallah. Thank you so much, sir. It's so nice of you. आपको हम जब तकलीफ देते हैं, आपके बारे में मैं यही बताती हूँ. The best thing about you is कि you are always there और आप हमारे बड़े और छोटे सवालों के ऐसे जबरदस्त और आसानी से जवाब दे देते हैं कि मजा आ जाता है, सर. तो आज मेरी बच्चियां यहाँ पे कुछ ऐसे सवालों के साथ हैं जो शायद जब ये इंसिडेंट हुआ था तो बहुत से बच्चों के जहन में ये सवाल होंगे. और let's talk to them. Please, girls, introduce yourself to Dr. Khalid. Assalamualaikum. My name is Zaina. Wa alaikum assalam. क्या हाल है बेटियों? Assalamualaikum. वालेकुम हम ठीक अस्सलाम. हैं, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह.
जैना, हमारे पहला सवाल के मतलब है लिबास से लग रहा है कि सर्दी काफी पड़ रही है। जी सर, कुछ ऐसा ही है। सर, आपकी इजाजत से सवाल शुरू करें? प्लीज प्लीज गो अहेड जी। जैना, लेट्स स्टार्ट विद यू। Khalid uncle, I want to ask you a question that what is the importance of education, like importance of education in Islam? And why does the world think that Islam is a narrow-minded religion? Uh, the importance of education in Islam is immense. I mean, without education, you cannot understand Islam. You cannot believe properly in God. You cannot come close to God. You will not be properly able to understand the purpose of this life. You will not know uh, why exactly did God create us. You will be in the dark, you know. So education के बगैर तो हम कुछ भी नहीं जान सकते. अगर आप कुरान मजीद को पढ़ें तो you will realize that the Almighty is urging you all the time when you're reading his book to think, to ponder, to reflect, to understand, to use your intellect. In other words, to get educated. So education is absolutely essential for us to be able to learn the Almighty's religion. आपका दूसरा क्वेश्चन ये Okay. है कि why is it that many people in the world consider Islam as a religion that narrows the vision of in individuals? I think it has got partly to do with our own mistakes of the present day Muslims, and it has partly got to do with the propaganda which some of the non-Muslims are making against us. But I think let's forget about them. Uh, let's not shift the blame on them.
In other words, he is being a witness of what God's message is. When he dies, he or she dies, he's a shaheed, because all along his life, what the person had done was to present the Almighty's message through his words and through his deeds. So when this person dies, and more particularly when he dies while discharging this obligation, he is a shaheed. Our kids were all shaheeds because they were in the process of learning. They had gone to the school and they were looking forward to becoming good Muslims. And unfortunately, what happened was that their journey of life was cut short by some very cruel people. And the Almighty is fair, the Almighty is caring, He's loving, He's knowledgeable, He's mighty. And I've got no doubt about the fact that we'll all go later, but they're already there, inshallah. जी अलीना, what do you want to ask about the terrorists आप जो बता रही थी? Yes, I wanted to know like who are terrorists and why do most of them look like Muslims? Uh, Terrorists are people who have understood their religion in a way that they feel inclined to terrorize people. They look like Muslims because they are under an impression that what they're doing is noble. Uh, You Unfortunately, mean what a happened is, disguise? I don't want to doubt their intentions. I just think that their way of understanding Islam is a very narrow minded way. It's a very one sided approach towards religion. You know, when you understand religion, or for that matter, any other subject, without allowing yourself the facility to be open, without allowing others to question you, without you asking yourself, am I going right? You see, if you continue to follow one path, one track, without questioning yourself, without questioning others who are teaching you, then the end result is that you end up become uh, first extremists and then terrorists. So the only way out is for us to, whenever we understand religion, we continue to ask ourselves, are we going on the right track? We keep listening to others also. So we are not narrow in our approach. We are not emotional in our approach. As I said, the Almighty wants us to use our intellect. So when you use your intellect, you question, you debate, you challenge. Obviously, politely. We don't fight. We learn. So all along the journey of learning, we are trying to understand what the truth is. Unfortunately, what extremists and terrorists do is that they take a decision at a very initial stage. That's what the truth is to us. And they never question their understanding, their narrative, their ideology. They continue to follow the track that they understood when they were 14 or 15 years old. Somebody had brainwashed them through emotional rhetoric, and then they would not never want to review it. That's what the problem is. So
अंडरस्टैंडिंग की वजह से मारा गया है, उसी सही। गलत नजरिए की वजह से मारा गया है। और नंबर 2, इस नजरिए की वजह से हमारा वही जो आप फरमा रही थी, खूबसूरत दीन, अल्लाह का पैगाम, वो लोगों की निगाहों में एक टेररिज्म पर मबनी पैगाम बन गया है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज कुरान मजीद की इस अंडरस्टैंडिंग को पहले खुद समझना। आपने आज मेरी बात सुनी ना, आप लोग मेरे पीछे पड़ जाएं, आप समझाएं जी, ये अभी बात समझ में नहीं आई है, हाउ कैन यू से दैट, लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे। और दूसरा, फिर उसके बाद हम दुनिया वालों को भी यही बात बताएं कि असल में अल्लाह का पैगाम ये था और लोगों ने यहाँ ये गलती की और इसकी इस्लाह के लिए अब हम ये दलाइल दे रहे हैं। सही, सही सर। सर थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से जवाब दिए। मैं तो खैर बच्चों के छोटे छोटे सवालों में भी उलझ सी जाती हूँ, लेकिन आप इतने पेशेंटली इसको समझाते हैं। हैट्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट Thank you वेलकम। ये मैं so आपको एक much. बात बताऊं, दिस इज माय पैशन। और मैं ये समझता हूं कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, जब इनको बात समझ में आ जाएगी ना, बिल्कुल। जब वाकई समझ में आ जाएगी, तो फिर वो खुद इसको अपना मिशन समझेंगी। सो इसके लिए सिवाय पेशेंटली बात बताने के कोई और तरीका ही नहीं है। जो नहीं है। लोग इमोशनल होते हैं वो असल में बात समझना नहीं चाहते। सो जी वी मस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। बिल्कुल सर। सर जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी कौम को, थोड़ी जाग जाए कौम हमारी, और खैर उन माओं को, उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चे आज के दिन खोए, एनीथिंग सर। देखिए, मैं उन वालिदैन को भी ये कहना चाहता हूँ, आपको बच्चों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया जिसको हम जी रहे हैं, ये दुनिया, इसके बनाने वाले ने खुद से एक पजल बनाई है। ये एक जिगसॉ पजल है। इसमें बहुत से सवालात हैं। इन सवालात का तसल्ली बख्श जवाब सिर्फ एक है और वो खुदा का दीन है। बिल्कुल। उसने इसको बाय डिजाइन एक पजल इसलिए बनाया है ताकि हम अपनी अक्ल से क्वेश्चंस करें और फिर उनके जवाब तलाश करें। और ये सबसे गुजारिश ये है कि हम अल्लाह के पैगाम कुरान मजीद को समझ कर जानें, उसको पढ़ें और समझें और क्वेश्चंस करें और उसमें डेप्थ में उसकी जाएं। कुरान हमको दावत देता है कि हम कुरान को तदब्बुर के साथ, गौर व फिक्र के साथ पढ़ें। जब हम उसको गौर व फिक्र के साथ पढ़ेंगे तो आप यकीन जाने कि हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी और कन्विक्शन पैदा होगी, जिसके नतीजे में हम सब इंसानों से हमदर्दी करेंगे, हम किसी से नफरत नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा होगी कि ए काश कि ये पैगाम सबको समझ में आए। मगर उसके लिए शर्त यह है कि हम अल्लाह के पैगाम को समझने के लिए खुले जहन के साथ तैयार हो जाएं। और आप यकीन जाने, बाज़ औक़ात बच्चे समझते हैं कि ये बड़ी बोरिंग सी चीज है, इसके पास जाएंगे तो पता नहीं हमारी इतनी अच्छी खूबसूरत एंजॉयबल जिंदगी खराब हो जाएगी। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि इसको समझने से ज्यादा कोई एंजॉयबल चीज नहीं है इस दुनिया में। अल्लाह के आगे सजदा करने से ज्यादा कोई इंसान के लिए प्लेजर हासिल करने का तरीका नहीं है, कंटेंटमेंट, सेटिस्फेक्शन हासिल करने का तरीका नहीं है। सो आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से गुजारें, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह के पैगाम को समझें और उसको इख्तियार करें, तो आपकी दुनिया में भी आपको खुशी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी खुशी और कामयाबी मिलेगी, जो हमेशा की जिंदगी है। और आप ये सोचिए कि ये हमारे पास कितना बड़ा पैगाम है। हमें पूरी दुनिया को ये पैगाम पहुंचाना है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले हम खुद अपने आप को ठीक करें। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी ज़ैना अलीना, why don't you thank Dr. साहब?